our today's topic, we are going to do the probability, right? Yes, sir. Okay. So in the probability itself, it says that the chances that occurs. What it says? Chances that it occurs, right? Can you hear me? Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Okay. So here I'm taking one image which will give you the clarity of that. Okay, just give me a second. I'm just going to upload the image on it. So it will be better. It will give you the clear idea. Oh, that's great. I cannot upload it. No problem. मैं काम करता हूँ ये वाला तो आ ही जाएगा. Okay, just hold second. I'm just going to upload it. Okay, can you see this picture? Can you see this picture? Yes, sir. Okay, in this picture, what you can see? In this picture, what you can see? Uh, Sir, I can see that 0% the probability of right. हाँ हाँ बोलिए जो जो आया मन में आप बोलिए कोई इशू नहीं है गलत होगा मैं सब The chances are zero in impossible, 25% unlikely. ओके The chances are 50%, we say equally likely. राइट If the chances are 75%, ओके then we say likely that it is likely to happen. ओके Or the chances are 100%, then we say that the chances are certain, then 100% it will occur. Or it, ओके ठीक है ओके चलो probability are chances we know about it, right? I'm just yes. taking example to make you understand. Suppose that I have one coin. What I have? One coin. Fine. So what is the total sample? NS means number of, I will write down here, number of samples. So how many samples we can collect? You know, if I will throw one coin, there is a possibility of coming head. There is a possibilities of coming tail. There are two possibilities. Am I right? Meenakshi, can you hear Yes, me? yes, sir. Okay. So there is a possibilities of coming head and the coming tail. Is there any other possibilities to come on it? No, sir. So we can say the number of sample is how much? Sample number of sample is 2. One is head and one is tail, right? So now I'm Yes. asking the question, find the probability, find the probability of getting a head. So a head means if I say here NE, what I will say? NE. NE means favorable. Any means favorable item. So what is the favorable item? Getting head, right? So how many times you are getting the head? We are getting the head only one time. Yes, sir. So here NE we can say NE is how much? NE is 1, right? Now probability of getting head, how we write down in the form. So we are writing probability of getting head. The formula will be NE upon NS, that we called 1 upon S. NS means 2. So it gives me how much the probability? Half or 0.5 we can say it. Do you understand how to write down the probability here? Hello? Yes, sir. Okay, so here I have taken one coin. So the number of sample is how much? 2. And out of the 2, so we have here number of head is 1. So we have written 1 upon 2, right? 1 by Yes. 1 by 2. Okay, so I'm just going to upload one. Just give me a second. Can you just note it down fast, this part? Hello? Yes, sir. Please note it down this fast.
Done? So 1 minute. Yeah, please do it fast. I have taken this example that I have one coin. So in the one coin, total outcome will be how much? Total outcome will be the two outcomes, correct? And if we have to get the head only, so head, how many times we will get the head? We will get the head only one time. So that's why the probability is 1/2. Is it noted with you? Shall I change the page? Yes, sir. Okay, I'm changing the page. So आप एक काम करो, आप इस वाला ये देखो, ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे. Can you see the formula? Yes, sir. So in this formula, you can see they have what they have told: theoretical and experimental probability. So if an experiment has number of different outcome, you can use the theoretical probability to describe how the likes different outcome, right? So आपके पास probability का formula क्या हो जाएगा? Probability is equals to number of favorable outcome divided by number of total possible outcome, right? तो आप ये formula note कर लो probability का. Please note down fast. हो गया नोट? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, सिंपल सी बात है. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम कहते हैं NE. क्या बोलते हैं? Any. NE. इसको नंबर ऑफ इवेंट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है. और टोटल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम को हम कहते हैं NS. क्या बोलते हैं हम लोग? NS. याद रखेंगे आप इसको, ठीक है? इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो इसको. NE मैं कर डिवाइड बाय लिया। NS. ओके. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको NS से क्या मतलब समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय NS? व्हाट डू यू मीन बाय NS? Sir, like the total possible outcomes which are Right. like. Correct. Okay, so I'm giving you some scenario. I'm giving you some scenario. You have to tell me what will be the total possible outcomes. Okay? तो Yes, मैं sir. सिंपल एक काम करता हूं. मैं पहले आपके साथ लेकर चलता हूं. इफ आई हैव वन कॉइन, ये कुछ चीजें आपको ना याद कर लेनी चाहिए. इफ आई हैव वन कॉइन, देन NS value will be how much? NS value will be 2. Two. How? I will tell you. They have head and just tail. These are the two possible outcomes, right? Yes, sir. So these are the two possible outcomes. So head and tail. So NS value will become 2, right? If suppose you are throwing two coins at one time, you are throwing how many coins? Two coins at one time. So how many possibilities you have? Look here. You have head. Oh, tail and tail. You have head tail. No, head tail. You have tail head, and you have tail and tail. How many possibilities do you get it now? 4. So the NS value will become here 4. Understood? Yes, sir. Okay, if I have 3 coins, then? If I have 3 coins, then? 6. No. It will not be 6. Look here. Head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, head. Then we have tail, 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 head, tail. Right? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can we write down here? Tail, 9. Total it comes 9s basically. Yes. Okay, so 7 I have written. So you need to know what are these. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 I have written. What is left with me? Tail, tail, head. Head, tail, tail I have written. Head, tail, no. So The head, tail, head. tail, head. I have not written. Yes, tail, head, and head, tail.
Okay, so total 9 outcomes will come in the coins. 3 coins के बाद क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है? तो क्या क्या सैंपल हो गए हमारे पास? 1 कॉइन में 2 सैंपल्स होते हैं, 2 कॉइन्स में 4 सैंपल्स, एंड 3 कॉइन्स में कितने सैंपल हो जाएंगे? 9 सैंपल. अच्छा चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? आप जरा सॉल्व करना, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, basis of the coins, I am taking the problem and you need to solve it. ठीक है? Is it clear? Yes. Okay, so I am taking one problem and we will see it. अच्छा एक चीज और याद रखना, मैं बता, देखो अभी मैंने क्वाइन का आउटकम बताया है, मैंने दूसरे का आउटकम नहीं बताया, सिर्फ क्वाइन के बारे में बात की है. कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? Yes, sir. So 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head? अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर ना वर्डिंग देख रहे हो, at least one head, और एक वर्ड आता है at most, at least और at most. इसमें क्या अंतर क्या है? मोस्ट का मतलब होगा कि मतलब कि दोनों ही, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर हेड्स, लाइक तो मोस्ट में हम लेंगे कि दोनों हेड्स होनी चाहिए, और एट लीस्ट में मतलब कि कम से कम एक तो हेड होना ही चाहिए, तो उसमें दोनों लेंगे शायद. नहीं एक मिनट, मैं आपको बता दूं क्लियर वर्डिंग्स का मतलब. देखो at least, at least, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आप एक शादी में गए, आप एक शादी में गए, वहां आपने बोला मुझे एटलीस्ट 3 स्वीट्स चाहिए. कितने स्वीट्स चाहिए? what you have told? At least 3 स्वीट्स. तो अगर जो शादियों में जो होते हैं ना मिठाइयां देने वाले, राइट, तो वो क्या करेंगे कि आपको अगर 4 स्वीट्स देंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? हेलो, कैन यू हियर मी? चलेगा. 5 स्वीट्स देंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा. 3 स्वीट्स देंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा. बट अगर 2 स्वीट्स देंगे तो चलेगा क्या? नहीं सर. नहीं चलेगा. तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 अगर वो देंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा अब दूसरा मीनिंग, एट मोस्ट 3 स्वीट्स. देखो मैंने क्या लिखा? एट मोस्ट 3 स्वीट्स. अब देखो इसमें क्या है, आप एग्जांपल लो, एट मोस्ट वाले को ना डायबिटीज रहती है. क्या रहता है? डायबिटीज. तो एक बात बताओ, उस डायबिटीज पेशेंट बोलेगा कि मुझे 3 स्वीट्स देना, अगर आप उसको 4 स्वीट्स दोगे तो चलेगा क्या उसके लिए? नहीं. 5 दोगे तो? नो. नो. अगर उसको 0 दोगे तो? 0 दोगे तो? चल जाएगा. 1 दोगे तो? चल जाएगा. 2 दोगे तो? चल जाएगा. 3 दोगे तो? चल जाएगा. तो there is a possibilities, नहीं भी दिया मतलब 0, नहीं भी दिया तो भी काम होगा, right? Now do you understand the difference between at least and at most? Yes sir. Okay, now coming to question. So in the question they have told at least one head. What they told me? At least one head. So now listen me, how to solve this problem I will let you know. First of all we will write it down here, NS. What I will write? NS. So you can see the possible outcomes are head, tail. There are 4 outcomes. Wait, tail head and tail. These are the possible outcomes, right? So the value of NS, number of sample, will become here 4. Any problem? Any problem? Yeah. No sir. Okay. Now if you see here, we will write down here NE. NE means favorable outcome. Favorable outcome ये बोलेंगे कि जो हमें चाहिए. Favorable outcomes. So I will write it down here. Favorable outcomes. So now according to question, at least one head. So देखो सारे samples में से at least one head किसमें मिलता है? तो at least one head का मतलब क्या? HH भी ले सकते हैं, HT भी ले सकते हैं, और TH भी ले सकते हैं. Can we consider TT?
नो सर. We cannot consider TT. So NE value क्या हो जाएगा? NE value will become here 3, right? So we can write it down. Yes. Probability of getting, ऐसे लिखते हैं, probability of getting at least, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, at least one head, that is equals to NE upon NS, and that is equals to 3/4. This is your answer. Do you understand how to solve, how to write? Yes sir. हाँ, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना, ठीक है? ओके सर. जल्दी से नोट कर लो, तो हम दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे. जब हम लोग करते हैं ये सब क्वेश्चंस वगैरह, तो हम ऐसे कोई सॉल्व तो करते ही नहीं है, हम सिंपल लिख देते हैं. कहाँ सिंपल लिख देते हैं? मतलब कि जैसे 2 कॉइन्स अगर हम टॉस साइमल्टेनियसली करते हैं, फिर हम उसमें जैसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो हम तो सिंपल काउंट करके लिख देते हैं. ये तो हमें फॉर्मूलाज अभी कराए नहीं थे. नहीं, तो आप लेकिन ऐसे लिखोगे, दैट इज द बेस्ट मेथड. ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज द बेस्ट मेथड. ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट मेथड. आप वहां लिख देते थे डायरेक्ट, दैट इज ओके. आप वहां करते आ रहे होगे इस तरीके से, लेकिन आप इस तरह लिखोगे ना तो मार्क्स कभी भी कटेगा नहीं. दे विल गिव यू 100% मार्क्स. ओके ओके सर. हाँ, शॉर्टकट देखिए, मैथ्स में शॉर्टकट ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. जब शॉर्टकट यूज करना है तो मैं बताऊंगा कि कभी करना है. देखो आप यहाँ भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. अब सीधा कि अब आपको 3 टाइम्स ये मिलेगा 4, तो 3/4 आप डायरेक्टली बोल सकते थे आंसर मुझको, राइट? यस आई एम सर. टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम. देखो इसमें कितने कॉइन्स हैं? हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव टेकन राइट नाउ? 3 unbiased coins are tossed simultaneously. So 3. can you tell me NS value will become how much? 3 coins 9. अब देखो यहाँ दिक्कत क्या होती है, आप जो बोल रहे थे ना कि सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दिक्कत क्या होगी मैं बता रहा हूं. इसमें 2 क्वेश्चन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स. देखो क्वेश्चन कैसे पूछा इन्होंने, ठीक है? तो अगर मैं पहला सॉल्व करने जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या होगा आंसर, आप मुझे बताओ फिर. एग्जैक्टली 2 हेड, हाँ 3/9. यू आर टेलिंग मी एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए कैसे, क्या क्या आउटकम आ जाएंगे? सर हमारा फेवरेबल आउटकम जो होगा वो होगा 3. नहीं, कौन कौन से होंगे तो वो नाम बताओ ना मुझे. HHT, HTH एंड THH, जिसमें दो एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए, राइट? ओके, नहीं ज्यादा होंगे सर. नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए देखो 3 ही आएंगे, 3/9. हाँ 3 आएंगे. So 1/3 is the answer, right? अब देखो कंफ्यूजन क्या हो रही है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स कौन कौन से आउटकम्स हैं. तो एग्जैक्टली 2 हेड्स हो गए HHT, THH, ओके, HHT, THH, और उसके बाद HTH. तो देखो ये अगर मैं लिख देता हूं तो ये आसानी से मिल गया. यस सर. और क्लियर भी हुआ कि हमने गड़बड़ी, जैसे आपने बोला नहीं सर ज्यादा होगा, तो इस चीज को लिखने से, फेवरेबल आउटकम लिखने से हमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, राइट? यस सर. अच्छा, इसका सेकंड प्रॉब्लम, एटमोस्ट 2 हेड. एटमोस्ट 2 हेड, अब देखो एटमोस्ट 2 हेड में मैं काम करता हूं, मैं इसमें लिख देता हूं फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम, अब देखो फेवरेबल आउटकम मैं इसलिए लिखने जा रहा हूं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो. क्या क्वेश्चन पूछा है? एटमोस्ट 2 हेड, राइट? यस सर. तो अब एक बात बताओ, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब अगर हमें एक भी हेड नहीं मिले तो चलेगा? यस. तो एक भी हेड नहीं मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा? TTT में. हो गया? अच्छा, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब कि अगर ओनली 1 हेड मिल रहा है तो भी चलेगा? यस सर.
तो ओनली वन हेड किसमें किसमें मिलेगा? एच टी टी, एच टी TTH, टी, टी टी एच, और किसमें मिलेगा? THT। टी एच टी। ओके, तो टी एच टी। उसके बाद टू हेड्स किसमें मिलेंगे हमें? एच एच, HHT, THH, एच एच टी, टी एच एच THH, एंड एच टी एच। HTT। एच टी टी, तो एच टी टी में तो सिंगल हेड मिलेगा ना? सर HTH। देखो इसमें ठीक जीरो है, हेड, इसमें ठीक है। जीरो हेड, इन तीनों में वन हेड, और इन तीनों में मुझे मिल गया टू हेड। 2 हेड। तो अब एटमोस्ट का बात समझ में आया कि एटमोस्ट बोलेगा तो जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा, टू भी चलेगा, राइट? अब इस चीज को यस मैंने लिख दिया, तो अब मुझे बताओ एनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनी की वैल्यू हो गई 1 3 3 सर। 6 7। एनी इज 7 ना? यस सबको ऐड करोगे ना इन सबको पॉसिबल आउटकम्स में? यस ओके, यस सर। ओके। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/9। 7 और 9। अब देखो, अब इसमें गलती होने के कोई चांसेस हैं क्या? मैंने जब फेवरेबल आउटकम लिख दिया, चांसेस हैं क्या? नहीं सर, नहीं है ना चांसेस? नहीं। हाँ, डायरेक्ट करते तो आप भूल जाते कि मैंने क्या क्या लिया था, तो आप एक रिपीट कर सकते थे, तो वहां पे मिस्टेक करने के आपके चांसेस बढ़ जाते, राइट? सो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, पुट इट ऑन फास्ट। ठीक है। जल्दी से नोट करो। यस सर। पेंसिल आप इससे लिखो। उठ के देखो, उठ के देखो। एंड सर डन। एंड मीनाक्षी, वन मोर थिंग, क्लास जो है जितने बजे शुरू होगी, मान लो 2 बजे शुरू होती है, आप क्लास 1:58 तक ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 2 मिनट ओके पहले सर। ज्वाइन कर लो, 5 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लो, दैट इज फाइन। एग्जैक्ट 2 बजे मत ज्वाइन करो, उससे पहले ट्राई करो कि ज्वाइन करो। ओके, ओके सर। यस, आई एम गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम। कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? यस। कैन यू रीड एंड सॉल्व? The whole numbers 1 to 10 are written on 10 slips. Which are then folded and placed in a hat. Which are the one slip is removed at random. Find Right. the probability that it is So what is the probability of getting 6? 1/6. No, 1/10. 10 slips hai Sorry, na? 10. Okay, now at least 8. 8/10. No, at least 8 कहने का मतलब कि 8 मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, और 10 भी मिल सकता है ना? So yes, 3/10. Yes, so it will become 3/10. What about P12? 0. 0, there is no chances. Correct? Okay, that's great. Yes, sir. Okay, देखो at least का मतलब यहाँ समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। Yes, yes, sir. अच्छा, चलो एक चीज मैं बताता हूँ आपको। चलो एक क्वेश्चन और, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया एक चीज देना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्वाइंस मैंने दे दिया ना आपको, कि क्वाइंस में कितनी कितनी वैल्यूज Yes. होती है। अच्छा, अब एक आती है डाइस, ठीक है? 1 डाइस, डू यू नो डाइस? लूडो खेलते हो लूडो? हेलो? Sir, yes. तो लूडो में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है नंबर उस पे। Yes, sir. सो अगर 1 डाइस फेंका, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने मिलेंगे हमें? 6 सैंपल। 6. अच्छा एक बात बताओ, 2 डाइस अगर थ्रो करोगे तो क्या मिलेगा? 12. नो, यू आर रॉन्ग, आई विल जस्ट शो यू। 2 डाइस फेंकेंगे तो 1 1 मिलेगा दोनों में,
पहले में 1, दूसरे में 2 मिलेगा, पहले में 1, तीसरे में 3। हमें इस तरह के नंबर्स मिलेंगे 2 डाइस फेंकने पे, देखो। Yes. So these are the probability, sorry, these are the possibilities of getting the values or getting the samples. Are you getting The my point? 36. Yes. So अगर मैं सेम इस तरह से करता जाऊं तो यहाँ पे मुझे 6,6 तक मिलेगा, right? So in this Yes. case, number of sample will become here 36 samples. So 2 dice में 36 samples होते हैं and 1 dice में हमारे पास total 6 samples होते हैं. Please make a note of the number of samples. ये important concept है यहाँ. Please make a note of it fast. Yes, sir. अच्छा, एक तो ये दे दिया हमने. अच्छा, दूसरा कार्ड्स प्लेइंग होता है. कार्ड्स ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. चलो कार्ड बताता हूं मैं. ओके, 1 पैकेट कार्ड, 1 पैकेट कार्ड. 1 पैकेट कार्ड में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स. कितने होते हैं? हेलो हेलो, मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी, Meenakshi, can you hear me? Meenakshi, can you hear me? Please Yes. unmute. Okay, I think from your side some internet issue. Okay, no problem. So we can continue. Okay. So do you know about the cards, playing cards? Pardon? Yes, sir. Okay. 52 cards. Okay, so you know the cards. So एक बात बताओ, एक पैकेट कार्ड में टोटल कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? Sir, 52. Yes, 52 कार्ड्स. Okay. अच्छा, चलो देखो, मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान से देखना. ठीक है? एक पैकेट कार्ड में टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स. राइट? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay. Now the packet card will divide into 2 colors. Just hold. Oh my God! Give me a moment. Give me just a moment. Give me a moment. Give me a moment. Okay. So in 1 packet card we have 2 colors. One is the black color, and one is it the red color. Do you know that? No, sir. Okay. So just give me a second. I'm just writing down here. So can you tell me, black color will be 26 and the red color cards will be how much? 26 cards, right? Yes, sir. अच्छा, black वाले कौन कौन से होते हैं, नाम पता है आपको? No. हाँ? No, sir. अच्छा, उनके नाम होते हैं स्पेड्स एंड क्लब. जो ब्लैक कलर में होते हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है स्पेड्स. गिव मी अ सेकंड. स्पेड्स एंड क्लब. ठीक है? ये 13 कार्ड्स स्पेड के हो गए और ये 13 कार्ड्स क्लब के हो गए. और रेड कलर वाले में नाम होता है, ओह गिव मी अ सेकंड, हार्ट एंड डायमंड.
कैन यू हियर मी मीनाक्षी? Yes, sir. आप इस चार्ट को जरा बनाओ, प्लीज मेक अ चार्ट ऑफ इट. ब्लैक कलर 26, रेड कलर 26. ब्लैक में स्पेड एंड क्लब होते हैं जो कि 13 होता है. और कार्ड देखा है आपने या नहीं देखा, ये बताओ पहले. नहीं सर. नहीं देखा है? ओके, आई विल शो यू. जस्ट होल्ड सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू द कार्ड. होल्ड अ मोमेंट. Yeah, Meenakshi, just sorry, actually my son was there. Okay, so 3 cards. आपने कार्ड नहीं देखा, I will just show you the cards. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay, और ये बहुत important information है. आप अगर नहीं नोट डाउन करोगे तो बाद में चल के दिक्कत होगी. कर लिया नोट. हाँ, जस्ट एक सेकेंड, मैं आपको ना दिखा देता हूँ कार्ड्स कैसे होते हैं. यस, चलो मैं निकालता हूँ. चलो मैंने निकाल लिया यहाँ पे कार्ड्स का. ओके, आई एम जस्ट शोइंग द इमेज हियर. ओके, कैन यू सी द इमेज? हेलो. Yes, sir. मैंने उसमें से एक कार्ड लिया है. उस कार्ड का इमेज यहाँ शो कर रहा हूं मैं. अब देखो, इसको बोलते हैं डायमंड. क्या बोलते हैं? डायमंड. इसको बोलते हैं हार्ट. इसको बोलते हैं क्लब. इसको बोलते हैं स्पेड. ये एक सिंगल मैंने सिंबल बनाया है. अब इसमें जो सिंबल बना होता है आप देखोगे, A 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद हो जाता है 10. फिर किंग, क्वीन, जोकर. डू यू नो दीज नेम्स? किंग, क्वीन, जोकर. मीनाक्षी, डू यू नो दैट? Yes. ओके, आपको नहीं पता तो मैं हर कार्ड में ईच स्पेड, ईच क्लब, ईच डायमंड, ईच उन सब के अंदर में देखो, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ. मेरे पास एक आ गया. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू राइट नाउ. ओके, Okay, sir. सो इट विल गिव यू द क्लियर आइडिया. अब देखो, टोटल इसमें 52 कार्ड्स होंगे. Just going to upload the figure. Oh my god, I'm unable to upload it, so that's why I can upload another one. Give me a moment. Just a second, I'm just trying to upload it another one. Copy. ये हो जाना चाहिए. Yes, can you see that? Can you see that? Yes, sir. देखो इसमें Yes, sir. इसमें देखो, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो, 1 में 1 नहीं बोलते, 1 को A बोलते हैं. ठीक है. और उसके बाद क्या है? जोकर, क्वीन, किंग. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. और सभी के लिए देखो, यहाँ पे ये हमारा है हार्ट, ये हमारा डायमंड, ये हमारा क्लब, ये हमारा स्पेड. सभी में 13 13 13. तो आप अगर ऐड करके भी चेक करो, so 13 13 13 13. how much it's are there? 52. और रेड और ब्लैक कर दोगे तो 26 हो जाएगा. राइट? Yes, sir. चलो, ये हो गया नोट. ये हो गया Yes, नोट. sir. चलो अब खेलते हैं कार्ड का गेम. रेडी? अब आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई पूरी. अब देखो, मैं इसमें आपको कुछ गेम करवाता हूं. चलो देखना. ठीक है? Yes, sir.
कार्ड वाले प्रॉब्लम्स कहाँ हो, जल्दी आओ. ओके, just give me a second, I'm checking the problem. So chalo, I have taken the problem, guys, and sorry, Meenakshi, and I will show you that. Okay. Yes, sir. Okay, so here, can you read the problem, please? One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of drawing a king? Okay, so so total sample is how much? Total sample is 52, 52. right? Now Yes. now he's asking, about the king, right? Yes. Has he told me black king, red king, like that? He is No, saying king. sir. So if you look the figure, how many king do you have? 4. So you have the 4 king. So you can write down here 4. So now the probability will become how much? Probability of getting a king? 4 over 52. 4 over 52. That will give me 1 upon 13. 3. Right? Okay, that's 13. great. So now I'm going to tell you one more question so you can understand, and it's based on the card. Based on card, I'm going to show you one more question. Okay, so can you see it? Yes. Okay, can you read the problem? One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card? Face card. So now we have face card, right? So अच्छा, अब एक बात Yes. बताओ, जरा मैं वापस से फिगर दिखाता हूँ, किस किस कार्ड में फेस है, किस किस कार्ड में फेस है, बताओ. जैक, क्वीन एंड किंग वाले में ही फेस है, और किसी में फेस है क्या? No, sir. तो कितने सारे जैक, क्वीन, किंग्स हैं आपके पास? सभी में सभी में है, राइट? So 12. total face card is 12. Yes, good, perfect judgment. So we can write it down here. And face card, number of face card is 12. So 12. probability of getting face card will become how much? 12 upon 52. 12 upon 52, और ये जो भी आएगा इसको हम देख लेंगे. I think it's कितना आ जाएगा? 3 upon 13. 3 upon 13. Right? Okay. Yes. ये आप प्ले कर रहे हैं या कोई छोटा ब्रदर है? सर हेलो, क्या? ये अभी यस पापा आप प्ले कर रहे थे कुछ सॉन्ग? नो सर. ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ओके, आई एम अपलोडिंग वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है. कैन यू सी द क्वेश्चन प्लीज? यस सर. व्हाट इज द क्वेश्चन? Amit draws a card from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that he draws a queen? So how many queens do you have? 4. So probability of getting queen is 4 upon? 4 upon 52. Good. What is the second one? Second one, tell me. And 8. 8. So how many 8 do 4 you upon have? 52. 4. Good. Perfect. 4 upon 52. How many spades do you have? Sir, can you show me the diagram? There will be the 13 spade. देखो सिर्फ 13 स्पेड होंगे ना. हेलो, Yes sir. आप देखो स्पेड कितने हैं. अच्छा, आप ये वाला चार्ट देख लो, कोई बात नहीं. ये देखो, इसमें कितने स्पेड्स थे? 13 स्पेड्स, राइट? सो यू विल, अगर स्पेड बोलेगा तो क्या लिखोगे? 13 upon 52. Good. A black card. What is your answer for black card? How many black cards do you have? 26. Good. So you have black cards are 26 by 52. और जो भी आंसर आएगा आप लिखते जाओगे आगे. मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा. The 6 of a club. What do you mean by it? 6 of. तो क्लब में कितने 6 होंगे? क्लब में एक ही 6 होगा ना. देखो, यस, क्लब कौन सा है हमारे पास? तो अगर आप देखो तो ये वाला क्लब बोलते हैं, ये लाइन. कैन यू सी दैट? और इस लाइन में हमारे पास एक ही क्लब में एक ही 6 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लोग 1/52.
Is that clear with you now? Yes sir. Any problem? No sir. अच्छा चलो ये लिख लिया ना. Yes sir. अच्छा चलो एक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. आई एम जस्ट Okay गोइंग टू sir. राइट डाउन. देखो प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला मालूम हो गया, एन ई अपॉन एन एस, राइट. Yes. एक नया फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मस्ट बी इक्वल्स टू 1. 1. इसको दूसरे लैंग्वेज में कुछ लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर्स हैपन प्लस probability of not happen. If you add them together it will be 1. 1. It will be 1. 1. मैं एक एग्जांपल लेता हूं and then I will tell you the question. Okay, and then I will tell you the answer. Fine. So why it is specifically 1 only? Why can't it be 10 or 100? No, because probability का lowest value क्या है? 0. and Yes. probability का highest value क्या होता है? 1. अगर आपको probability 1 से ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकती है. 1 से So ज्यादा why? क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है. सो दिस फ्रैक्शन यस मींस 1. तो अगर 1 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है? ओके ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1. अंडरस्टैंड? Okay sir. फ्रैक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1. आप देखो ना, मैंने एक इमेज अपलोड भी किया था आपको, शायद आपने ध्यान दिया नहीं. आई थिंक आई हैव अपलोडेड इन द फर्स्ट वन. कैन यू सी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी हैव? कैन यू सी दैट? Yes sir. 1. तो 1 इज द, अगर 100% है तो प्रोबेबिलिटी 1 कहलाएगा. क्यों? बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन वैल्यू. एंड अगर सबसे कम है तो सबसे कम है 0. 0. इज इट क्लियर? Yes sir. अच्छा याद रखना, happens मतलब yes, not happens means not. अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? I will just write down here. PE means happens and PE पर देखो, एक मैंने ऊपर एक सिर के ऊपर छतरी डाल दी. Can you see that? Yes sir. तो इसको P not बोलते हैं. क्या बोलते हैं? P not. P naught. And that will be equals to 1. नोट कर लो जल्दी से. P not को ये बोलते हैं, ऊपर में डंडी लगा के. जल्दी से नोट करो. So I will give you one question here. So done. Done. Okay, so I'm giving you one question and you will try to do it. Hold a moment please. So you can see the, can you read, can you read the problem here? The probability that it will snow on Christmas Day is 0.15. Okay, so Find the probability, probability. yes, probability of snow is how much? 0.15, right? So they Yes, are sir. asking find the probability that it will not snow. So we know very well P snow plus P not snow will be equals to 1. So P snow Yes. की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. तो P not snow की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से? Yes, sir. तो P not snow क्या हो जाएगा? 1 minus 0.15 0.85. Clear? Yes, sir. Make a note of it. Sir, but I have one doubt. Ask me. That if we talk about yes or no, then that should be 0.5 and 0.5. Huh? And this is saying that if we talk about yes or no from the probability, then it should be 0.5 or 50%. नहीं, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है ना, 0.15 दे रखा है, तो 50% आप कैसे मान तो लो? सर जो ये नॉट स्नो है, इसके साथ कुछ और भी तो एडेड होगा, क्योंकि नहीं. अगर हम सिर्फ दो
या तो नहीं होगा या होगा, दो ही ऑप्शन है ना। रुक रुक के होगा, धीरे धीरे होगा, ये तो कुछ बोला ही नहीं है ना इसने। या तो सर होगा। अगर हम हाँ बोलिए बोलिए। अगर हम 2 पॉइंट लेके चलते हैं कि या तो होगा या नहीं होगा। यस, दो ही लेके चलते हैं, राइट। ओके ठीक है, तो इसमें ये है कि स्नो के चांसेस कम है और नॉट स्नो के ज्यादा है। यस, यू आर राइट। अंडरस्टूड। ओके सर, यस सर। सर डन। डन हो गया। चलो अब यस देखो, ये जो थे ये हमारे थ्योरेटिकल थे, कुछ हम प्रैक्टिकल भी करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। सारे फॉर्मूला जो आपने पढ़े वो यही लगेंगे, कोई अलग से नहीं लगाना हमें फॉर्मूला, ठीक है। बस उसमें थोड़ा ओके सा सर। डिफरेंस रहता है जो कि मैं समझा देता हूँ। ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन means tomorrow also we will do this probability, and I hope in 2 to 3 sessions it will finish. Okay, so no need to worry about it. So देखो मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, या एक काम करूंगा मैं ना, प्रैक्टिकल वाला जो है वो कल शुरू करूंगा। आज थ्योरेटिकल वाले खत्म कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल में भी बचे हुए मेरे पास, बिकॉज आई हैव ओनली 4 minutes. ओके, ओके सर। सो आज थ्योरेटिकल फिनिश कर देंगे। आपकी बुक कब आ जाएगी? सर अभी तो स्कूल से हमने पोस्ट पे मंगाई है बुक। बुक ओके ऑलरेडी मोहाली पहुंच चुकी है, ओके, तो कल या परसों जाके हम बुक्स ले आएंगे। तो आप मोहाली जाओगे लाने? यस सर, ओह ओके, बिकॉज इट केम फ्रॉम हिमाचल, अच्छा सिरमौर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज सॉल्व दिस वन। One card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? रेड कार्ड और अ किंग। अब देखो यहाँ बहुत 20. जबरदस्त, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे। टोटल कार्ड इज 52, सो एन एस इज 52, राइट। 52. अच्छा अब देखो पूछा Yes. क्या कि रेड कार्ड होना चाहिए और किंग King भी होना. होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब हम रेड कार्ड ले रहे थे, कितने रेड कार्ड है हमारे पास? 26. 26 रेड कार्ड में 2 किंग आ जाएंगे या नहीं आएंगे? 20। सर उन्होंने ये तो बोला ही नहीं किंग कि किंग सिर्फ रेड कार्ड का होगा। उन्होंने किंग बोला तो चारों किंग नहीं लेंगे। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही। रेड कार्ड मतलब 26 कार्ड हो जाएगा। यस अच्छा, किंग का मतलब 4 किंग हो जाएंगे। यस। लेकिन आप रेड वाले किंग को 2 बार ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बताओ। इसमें दो रेड किंग होंगे एंड 2 ब्लैक किंग होंगे, राइट। ओके तो आप ये रेड वाले को डबल टाइम ले लोगे, तो हम यहाँ पे 4 ना ऐड करके 2 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस 26 में 2 रेड किंग तो ऑलरेडी एडेड है। अंडरस्टूड। यस सर। सो टोटल यस कार्ड अब हमारे पास यहाँ कितने हो जाएंगे? टोटल कार्ड यहाँ पे हो जाएंगे 28। 28. अब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए 28 अपॉन 52। 52. अंडरस्टैंड। और इसको जो भी सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हम लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके फाइन, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और तब तक देख लेते हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है आज, प्लीज आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके ओके, सर। कैन यू सी दिस? अ यस किंग सर। और अ जैक। तो कितने किंग होंगे, कितने जैक होंगे? 4 किंग 4 जैक, राइट। यस तो सर। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 8. हम लिख सकते हैं 8 बाई 52, करेक्ट। यस अच्छा, सर। यहाँ पे नॉन एस, नॉन एस मीन्स कितने एस है हमारे पास टोटल? 4 एस है ना। 4 is वेट, means. हमारे पास कितने हैं? 4 एस हैं, राइट। एस मतलब ए ए ए ए लिखे वाले, ए लिखने वाले। देखो यहाँ पे ओके टोटल ओके ए कितने हैं? ए वाले 4 है, राइट।
लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉन एस, तो हमारे पास 4 एस है, तो कितने नॉन एस हो जाएंगे? 28. नहीं, 56 माइनस 4, सॉरी 52 माइनस 4, कितने हो जाएंगे? 48. 48. सो इसके लिए सेकंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48 बाय 48 upon 52. रेड कार्ड के लिए क्या हो जाएगा जी? सीधा Red 26 बाय card we 2. have 26. अच्छा, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। अब देखो इसमें कैसे हम बनाते हैं। अब नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन जब पूछता है ना, तो पहले किंग और क्वीन का बना लो। तो कितने किंग कितने क्वीन होंगे आपके पास? 4 and total will be 8. तो टोटल 8 मींस ये हो जाएंगे किंग एंड क्वीन, राइट? Yes sir. तो आप मुझे बताओ, नॉट क्वीन नॉट किंग कितने हो जाएंगे? तो 52 माइनस 8, 52 minus 8. 44. 44. So P will become here 44 by 44. 52. अब समझ आया कैसे करते हैं इसको? Yes sir. ओके चलो ठीक है, तो हम आज क्लास अभी यहाँ एंड कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास। हम लोग कल भी सेम टाइम पे मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी फिनिश करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके, और कुछ मैं क्वेश्चंस आपको आज नहीं, मैं कल आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा जिससे आप सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है? आज की क्लास पूरी समझ में आई? हाँ बोलिए। Yes sir. सर जब ये बुक आ जाएगी तो फिर मैं आपको बुक सेंड करूँ पिक्चर्स? नहीं, मैं मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूरत नहीं, मैं खुद मांग लूंगा क्या मुझे चाहिए, ठीक है? ओके सर. जब आ जाएगी तो मुझे बता जरूर देना कि आ गई है बुक। ओके ओके, तो आज की क्लास पूरी समझ आई या नहीं आई? हाँ जी सर. ओके ठीक है, चलो तो हम कल मॉर्निंग सॉरी कल 2 o'clock हम लोग मिलेंगे, ठीक है? सर आप मुझे एक बार रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना. यस, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। ओके सर. या ओके, बाय।